اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ ملزم عمیر صدیقی نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. بہت شکریہ الطاف حسین صاحب, آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا. کہیے گا. سب سے پہلے میں جیو ٹیلی ویژن, نبیہ صاحبہ اور زیب حسن صاحب, آپ کو, آپ کے پورے عملے کو اور ناظرین کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے, ان للہ و انا الیہ راجعون. وقاص علی شہید کی تعزیت کرتا ہوں میں, اور دیگر جو لوگ اس وقت رینجرز جو پیرا ملٹری فورس ہے, فوج کے جو ریگولر افسران ہیں, وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم کو اپنی ناکامیوں میں پردہ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا ہے. اور جب ان سے کچھ نہیں بن پا رہا تو وہ اب آ گئے ہیں ایم کیو ایم کے نہتے کارکنوں 90 پر چھاپا مارنے, میری بہن کے گھر چھاپا مارنے, میرے بھانجوں اور رشتہ داروں کو گرفتار کرنے پر اتر آئے ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں, وہاں کوئی وکیل نہیں موجود. یہ بیانات وہی ہیں جو 92 میں فوج نے پر کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لے کر پریس کانفرنس اپنے زر خرید اینکر پرسنز اور رپورٹرز کے سامنے پیش کیے تھے. یہ رینجرز کے افسران بزدل ہیں, جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں, دھوکے باز ہیں. یہ اگر بہادر کے بچے ہوتے تو میں ٹیلی ویژن, جیو ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی انجمنوں تک اس ٹیلی ویژن کے ذریعے ایشیا آواز, ایمنسٹی انٹرنیشنل تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. چلے, ایم کیو ایم بقول فوج کے رینجرز کے خراب جماعت ہے, خراب ہے, لیکن گزشتہ 3 سالوں میں 5 سالوں میں جو شیعوں کی بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کر جن لوگوں نے گلے کاٹے, گولیاں مار کر شیعوں کا, عیسائیوں کا قتل عام کیا, ان شیعوں کے قاتلوں میں سے کسی ایک قاتل کو ان بہادر فوج کے بہادر کرنل طاہر جیسے اور ڈی جی رینجر بلال جیسے بہادر جرنیلوں نے گرفتار کیا؟ کیا ایک کو بھی پکڑا؟ ان کو تو قاتلوں کو رہا کیا جا رہا ہے. جنہوں نے کوئٹہ, جنہوں نے زیارت کے لیے ایران جانے والے شیعوں اور تو گلگت میں, بلتستان میں, اچھا الطاف صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو تمام تر باتیں کی اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے؟ اور اگر سازش کی جا رہی ہے تو وہ کون سے عناصر ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو اس سازش میں ملوث ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں فوج کے وہ افسران, وہ جرنیل شامل ہیں جو قائد اعظم کو قتل کرنے کی سازش کا عمل کرنے والے ہیں, ان کی اولادیں ہیں, جو ماشاء اللہ لگانے والے ہیں ان کی اولادیں ہیں,
جو فاطمہ جناح کو قتل کرنے والے ہیں، جو لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور جو ایسٹ پاکستان میں نسلیں بدلنے گئے تھے، ملک گواہ بیٹھے، پہرا دینے گئے تھے، چمن کھا لیا آدھے لقمے میں، آدھا ایک لقمے میں آدھا وطن کھا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب باقی ماندہ ملک کو تباہی بربادی کے کنارے پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جاگیرداروں کے، وڈیروں کے، لٹیروں کے، پیسے والوں کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے پروٹیکٹرز ہیں، ان کی خود بھاری بھاری کمیشن لیتے ہیں یہ۔ جی اور جی الطاف حسین صاحب یہ بتائے گا، اب ایم کیو ایم کا اگلا لاہ عمل ہوگا کیا؟ قانونی طور پر تو آپ کے وکلا لڑ ہی رہے ہیں لڑائی، عوام کی جانب بھی بڑھیں گے، رائے عامہ اپنے لیے ہموار کریں گے؟ عوام جو کل میرے ساتھ نہیں تھے، خدا کا فضل ہے آج وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن برداشت اور صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ I want peace. I want to resolve all the problems through dialogues, negotiation in honorable way. جھک کر نہیں، میں ان کا نوکر نہیں، یہ قوم کے نوکر ہیں، یہ حاکم بننے آئے ہیں۔ اور جس طرح ایسٹ پاکستان میں گئے تھے، دوسری مرتبہ انہوں نے ایم کیو کی ہے، یاد رکھیے مکافات عمل کے تحت اللہ نے کوئی سبیل نکالی تو آپ دیکھیے جلد ہی ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کا میڈیا ٹرائل کرنے والے ان رینجرز کے افسران جن کا تعلق ریگولر آرمی سے ہے، ان کی آل اولاد کا بیڑا غرق ہوگا، بدترین عذاب الہی سے دو چار ہوں گے۔ یہ ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ رہے، ان کو رہا کر رہے ہیں۔ کل بھی رہا کیا ایک ٹارگٹ کلر کو جو ہزاروں شیعوں کا قاتل ہے۔ یہ وہاں یہ لیاری میں جنہوں نے گردنیں کاٹی، جن لوگوں نے فوجیوں کی گردنیں کاٹ کے فٹ بال کھیلی، وہاں تو جا نہیں رہے، یہ ان کو پکڑ نہیں رہے۔ یہ نہتے مہاجروں پہ پل پڑے ہیں، پاکستان بنانے والوں پر۔ یہ پاکستان بنانے والوں کو تباہ کرنے کے لیے جو عمل کر رہے ہیں، پہلے آدھا پاکستان بنانے والوں کو مار کر آدھا پاکستان گنوا دیا۔ یہ اللہ نے انہیں دوسرا موقع دیا تھا۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں گئے، نہ آج ہم پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کے پنجابیوں، بلوچ و سندھیوں، تو فوج کے خلاف، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسا ٹرائل کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں ان کو ایم کیو ایم کے علاوہ سارے پاک پوتر نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا اے این پی کے بعد ملیٹنٹ ونگ ہے جماعت اسلامی، جس کے گھر سے القاعدہ کے لوگ نکلے، کیا فوج کے ان بہادر افسران نے، یہ کرنل طاہر اور کیا ہے ڈی جی رینجر، یہ ان کے گھر گئے جہاں سے القاعدہ کے طالبان والے جنہوں نے قتل کیے وہ بڑے بڑے قاتل نکلے، کیا ان کو پکڑا؟ کیا ان رینجرز والوں نے، رینجرز کے
के फौजियों ने उनको पकड़ा कि कामराबे के पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूत ताकतवर। अल्ताफ हुसैन साहब ये बताएगा, कराची पाकिस्तान का हब है, इकोनॉमिक हब है, यहाँ पर टारगेट किलिंग भी होती है, बत्ताखोरी होती है, अमन अमान की सूरत हाल होती है, इकोनॉमिक सरगर्मी भी नहीं बढ़ती आगे। इसका जिम्मेदार है कौन, आप क्या समझते हैं? इसका जिम्मेदार वो हैं जो काकूल एकेडमी के सरपरस्त हैं, चलाने वाले हैं, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, जहां फौजी ट्रेनिंग लेते हैं उसके छप्पर में, उसके शेडो में 6 साल उसामा बिन लादेन रहता रहा। ना काकूल अकादमी के लोगों को गिरफ्तार किया, ना कर्नल ताहिर को गिरफ्तार किया, ना डीजी रेंजर्स को गिरफ्तार किया, ना ISI के कमांडर को गिरफ्तार किया, ना फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार किया कि कैसे रह रहा था उसामा बिन लादेन फौज की छावनी में। जी अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब, ये उमैर सिद्दीकी कौन है, इसके हवाले से कुछ मालूम है आपको, कोई इंफॉर्मेशन है? उमैर सिद्दीकी उसामा बिन लादेन ही का कोई शायद दुश्मन होगा जिसको पकड़ा है, वरना उसामा बिन लादेन के चाहने वालों को तो ये फूल पहना पहना के उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं पूछता हूं ना, आपसे पूछा, मेरे सवाल का तो आप जवाब दे, मुझसे सवाल किए जाते हैं। इन्होंने जमात इस्लामी के उन लीडरों को क्यों नहीं पकड़ा जिनके घर से तालिबान के लोग पकड़े गए, अल-कायदा के लोग पकड़े गए? उमैर सिद्दीकी को अगर वो मुजरिम है फांसी पर चढ़ाए, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना धोखा न करे। अच्छा अल्ताफ साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज जब उमैर सिद्दीकी की गिरफ्तारी अमल में आई, उसके जो बयानात सामने आए हैं, उसने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उसका ताल्लुक MQM से रहा है और 120 अफराद के कत्ल का भी उसने एतराफ किया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपका क्या मौक़िफ़ होगा? 15,000 जो मुहाजिर नौजवानों को फौज ने 19 जून 1992 के ऑपरेशन के बाद से लेकर आज तक कत्ल किया है, कल तक 11 तारीख तक कत्ल किया है। वो कातिल फौजी किधर हैं? उनमें से किसी एक को सजा हुई नहीं हुई। तो जब दुनिया में सजा नहीं मिलती तो कुदरत का कानून अमल हरकत में आता है। उसकी लाठी बे आवाज है, उसकी देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहते हैं अल्ताफ साहब की बल्दियाती इंतखाबात की डेट सब मुकर्रर हो गई है, इस हवाले से MQM का लाहे अमल क्या होगा? और आप समझते हैं कि MQM के ऊपर प्रेशर भी किया जा रहा है? MQM का लाहे अमल यह है कि ये कितना ही MQM के कारकुनों का कत्ल टॉर्चर कर ले, वक्त एक जैसा नहीं रहता। कुदरत कल हमारे लिए भी कोई सबील पैदा करेगी। फिर हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं, लेते रहेंगे, लेकिन इन जालिम फौजी दरिंदों के आगे हथियार नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। मैंने इन फौजियों को सलूट करवाया, ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था। आज मैं अपने सलूट पर शर्मिंदा हूं। जी अच्छा, ये जो हालात डेवलप हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? और क्या सिंध हुकूमत से भी कुछ आपको
शिकवे हैं, गिले हैं, हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं आप आगे जाकर या नहीं? सिंध हुकूमत है ही नहीं, नाम की हुकूमत है। आपको क्या मालूम? आप जियो टेलीविजन में अगर इतनी हिम्मत है तो वो कुरान मजीद लेकर जाए और हालत होश में चीफ मिनिस्टर सिंध के से कहे कि ना धोकर आओ, कुरान पे हाथ रख के पूछ के बताओ कि क्या इन्होंने तुम्हें बताया था कि हम अल्ताफ हुसैन के घर छापा मारने जा रहे हैं? जरा पूछिए तो जाके इनसे। अच्छा अल्ताफ साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने एमक्यूएम की जानिब से रैलियां भी निकाली गई और हमेशा अगर एमक्यूएम की हिस्ट्री भी देखी जाए तो फौज के किरदार को हमेशा सराहा गया है और इनफैक्ट आपने मार्शल लॉ की भी हिमायत की है, उसको सपोर्ट किया है आपके बयानात के अंदर। तो आज आप फौजी अफसरान के बारे में जो आपका मौकिफ है, जो बयानात हैं, वो बिल्कुल तब्दील हो गए हैं? जी नहीं, तब्दील शुरू से मेरा फौज के लिए सिर्फ हिमायत सिर्फ इसलिए की कि इन्होंने अल-कायदा तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने का आगाज किया और अमल किया तो साथ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब दिखावा है। तो आप अल्ताफ हुसैन साहब रिग्रेट करते हैं इस फैसले को, इस हिमायत को? ऑफ कोर्स बहुत रिग्रेट करता हूं। क्यों कि पूरा कराची आज भी भरा पड़ा है तालिबान से, अल-कायदा से। जहां तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, सिंध गवर्नमेंट तो अब से बाथरूम तक नहीं जा सकते। ठीक है अल्ताफ साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो मसाइल सबकी नजर में है, आप क्या समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल ये है कि पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिबरल हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं, डेमोक्रेटिक माइंडेड हैं, वो मैदान में निकले, ह्यूमन राइट्स की अंजुमनें निकले और वो कुर्बानियां दे आए मैदान में, पूरी कौम को निकाले और फौज को बैरकों में भेजें और लोकल बॉडी सिस्टम कायम करें, लोकल पुलिसिंग का सिस्टम कायम करें ताकि फौज की जरूरत ही बाकी ना रहे। फौज का अमल दखल 0+0=00 इन दी अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस ये करें। नवाज शरीफ साहब ने की थी तो ठुड्डा मार कर उनको निकाल दिया, उसके बाद माफी मांग के वो वापस आ गए और अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वो फौज के सामने मुंह खोल सके। चौधरी निसार में हिम्मत नहीं है कि वो फौज के सामने खोल सके। ये बुज़दिल लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। जी अच्छा, आप भी बारहा कहते रहे गए हैं कि कराची को जराइम पेशा अफराद से पाक करना चाहिए। आपकी नजर में ये किस तरीके से हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट ना हो और लोग सुकून से रहें? फौज नहीं कर सकती, उन्हें पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं गलियों को, वो कराची के मिजाज को ये पुलिस जानती नहीं है। लोकल पुलिस भर्ती करे, मेरे हाथ में दे ना, एमक्यूएम के हाथ में दे, लोकल पुलिसिंग करे, लोकल भर्ती करे, हर गली से एसएचओ ले, हर गली से पुलिस वाला ले। मैं देखता हूं कि अगर 100% नहीं तो 99% जराइम खत्म हो जाएंगे। जी अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ये बताइएगा, अंग्रेज के जमाने की तरह
क्या इन्होंने मजाक लगाया हुआ है कि एक जगह की पुलिस 1000 मील दूर जाके इसलिए लगाते थे कि वहां जुल्म करे, जबर करे, इसलिए ये यहाँ पुलिस भी वो लेकर आते हैं जिनको यहाँ की ना जबान आती है, ना सकाफत आती है, ना मिजाज मालूम है, ना खाना मालूम है, ना तहजीब मालूम है। अच्छा अल्ताफ हुसैन साहब, आप तालिबानाइजेशन के बारे में आवाज बुलंद करते रहे हैं, कराची में तालिबान है आप कहते रहे हैं, लेकिन कहिएगा तालिबानाइजेशन से पहले कराची में अमन अमान की सूरत हाल तो थी, टारगेट किलिंग भी की जाती थी, बत्ताखोरी भी थी और हालात खराब ही थे, लोगों को मारा जा रहा था। आपने फौज की हिमायत की और बारहा आपने कहा कि फौज आए, ऑपरेशन करे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त की सूरत हाल उस वक्त भी यही थी और तालिबानाइजेशन के बाद की भी यही थी। इन दोनों को तकाबुल करके आपने हल क्या निकाला है और फौज की हिमायत का ऐलान, उसके ऑपरेशन का हिमायत? वो इसलिए कि गलतफहमी हो गई हमारी, हम समझे कि फौज वाकईतन अब मुल्क को क्रिमिनल एलिमेंट से पाक करना चाहती है और वाकई संजीदा हो गई है। 25 सालों से 30 सालों से रेंजर्स कराची में है। अगर 30 सालों में अरबों खरबों रुपया सिंध गवर्नमेंट रेंजर्स को खिला चुकी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर रेंजर सही कर सकती होती तो 30 साल में ये नहीं कर सके तो 30 दिनों में क्या खाक करेंगे। हम समझे ये संजीदा हो गए हैं जी। ये ईमानदार, हमें थोड़ी ये मालूम था इनके पॉलिटिकल एजेंडाज हैं आज भी। हमने कहा इन्होंने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया होगा, ये हमारी गलती थी, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, उसी की सजा भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे। हथियार सरेंडर नहीं करेंगे, नो रिट्रीट, नो सरेंडर, वी विल डाई, वी विल नॉट रिट्रीट, वी विल नॉट सरेंडर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन अपना मौकफ पेश कर रहे थे, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि रेंजर्स अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जामात आयद कर रहे हैं। इसके साथ साथ एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने यह भी कहा कि एमक्यूएम को बदनाम करने की कोई साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर एमक्यूएम का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इंसानी हकूक की तंजीमों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। एमक्यूएम के कायद का कहना था कि फौज की हिमायत सिर्फ इसलिए की कि उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि अल्ताफ हुसैन, पूरा कराची आज भी तालिबान और अलकायदा से भरा हुआ है। सिंध हुकूमत के लोग तो अपनी मर्जी से बाथरूम तक नहीं जा सकते। अल्ताफ हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जियो न्यूज से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे।